Okay, so we will be discussing first the 10 markers questions, then we will be discussing about the 15 markers. So for 10 markers, the first question we will be taking is, it was the first question of a test also. Faster economic growth requires increased share of manufacturing sector in GDP. Comment on the steps taken by government in this regard. So it is straightforwardly asking, uh, to ensure a faster economic growth, we have to encourage our manufacturing sector. So to ensure faster economic growth, we have to also encourage our manufacturing sector so that it will propel the economic growth, faster economic growth. And the first part is that, and the second part is it is asking steps taken by the government in this regard. In this regard, in the sense, what steps have been taken by the government to develop the manufacturing sector in India. So we can start with some data in the introduction. Like India followed a growth trajectory which was different from other countries. In India, the service sector contribution to GDP has risen from 45% to 55%, while manufacturing sector had a very small growth from 15% in 2017 to 17% in 2022. So in this introduction, we have tried to show a contrast between the service sector and the manufacturing sector. How service sector has growth rapidly and how manufacturing sector has not grown in that sense, means not in that rapidly as compared to service sector. So then we can say, as the question has asked, for better economic growth, we need a manufacturing sector which is developed. So we can give some data, like we can give a heading. We will be studying our body now. In the heading, we can write importance of manufacturing sector, including MSMEs. In this answer, I have included MSMEs because in previous year questions, directly question related to MSMEs have also come. So you can write an answer related to both manufacturing sector and MSME sector also. So I have included MSMEs in manufacturing sector also. So what data we can write? First data we can write, contribution to total exports is more than 50%. Manufacturing sector has more than 50% contribution in exports. Second, employment more than 11 crores people. So it generates a huge employment. Third point is job opportunities in both rural and urban areas, which can ensure inclusive growth. And next one is, fourth one is, has a multiplier effect on the economy. Multiplier effect on the economy କିଏ ବୁଝେଇ ପାରିବ ମତେ ତା ମାନେ କଣ? Multiplier economy माने जब हमें जो in case manufacturing sector steel पे industry in case invest कले तो steel ଟା पर पुनी जाय कि car sector invest होची car sector रे पुनी service तो कोई multiple हाँ हाँ ता माने सिंपल मीनिंग माने जदि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे इन्वेस्ट करिया देन ता संगे लिंक जो सब सेक्टर सन से माने को भी ग्रोथ बहुत अधिक हो. बेस्ट एग्जांपल इज हमरो सर हमरो जो ये इतला सर रिवोल्यूशन ग्रीन रिवोल्यूशन ग्रीन रिवोल्यूशन तो हमरो एग्रीकल्चर बूस्ट हेतला ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होड नहीं सर वो एग्जांपल कथा कहू सर माने हमें देई परियो ना बिकॉज़ ऑफ मशीनरी यील्ड प्रोडक्शन जो यील्ड प्रोड्यूस होला हां माने ठीक सेमिति कहि परियो कि एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन भी हेतला बहुत माने ये प्रोडक्ट्स यूज हेतला बट ग्रीन रिवोल्यूशन स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पई हेतला एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पई जहा सो फार्म मेकानाइजेशन हला सेउडा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे सेइत पई बूस्ट हेतला. हां सेडा मु कहला चाहूछी सर. अच्छा हाँ ठीक है बट ग्रीन रिवोल्यूशन स्पेसिफिकली हाँ ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हे परियो तार एग्जांपल भी आपण माने दे परियो किछ असुविधा नै. एटा भी देई होबो कि एलपीजी रिफॉर्म्स जो हेतला सेथरे भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को केते बूस्ट करेतला. एबे तो रिसेंट एग्जांपल बहुत अछि मेक इन इंडिया अछि तापरे स्किल इंडिया अछि तापरे कोन आउ पीएलआई स्कीम प्रमोट करा होछि ये पय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पय डिफेंस एबे तो रिसेंट एग्जांपल बहुत अछि. ठीक हमें देखि दबो स्टेप्स कोन नहीं सब्सिडी भी दउछंती एमएसएमई रे सब्सिडी हां सब एमएसएमई रे सब्सिडी मिलु छी ठीक आ तांको रेगुलेशन को भी बहुत स्ट्रीमलाइन कराई छै आगु एते रेगुलेशन थले. हां सेटा हम सब देखि दबो कोन स्टेप्स नहीं छै कोन कहलो सर एमएसएमई आगु थिला 25 50 लाख कर दै छंती बे. हां अबे तर सब सब क्राइटेरिया चेंज हाँ सब क्राइटेरिया चेंज है. ठीक अछि एबे हमें देखिबा कोन स्टेप्स नहीं छै स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू सपोर्ट
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फर्स्ट होची मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान धीरे जाक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट करिया। Then second step is emergency credit line guarantee scheme of 5 lakh crores. So emergency credit माने कोन तांकु लोन दरकार तो सेमाने लोन नै परिबे इजीली तांकु लोन अवेलेबल हे जो। तापर आ गोटे जिंस होची one district one product this thing is also promoted so that export will be boosted and as export will boost then manufacturing sector will also boost. So one district one product is also being implemented. And fourth one is hand holding support through Stand Up India scheme. So Stand Up India scheme is promoting entrepreneurship. So government is providing hand holding support so that entrepreneurship can also grow. Then fifth one is online portal like champions for grievance redressal and hand holding for MSMEs. So we have also included MSME. So we have a portal for them known as champions which fulfills their demands of grievance redressal and hand holding also so that they can also grow. So writing these all schemes, you can also write other schemes, but I have just tried to provide a structure for the answer. This is a structure in which way you can write. You can write many more schemes for manufacturing sector, but I have just provided a structure. So in conclusion, you can write manufacturing sector will play an important role in India's growth as India enters the Amrit Kal phase. So simple conclusion with which you can end your answer. ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କଣ ହବ ମେନ୍ ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହିଁ ମ୍ୟାଟର କରେ କାହିଁକିନା ସ୍କିମ୍ ତ ତମେ ବହୁତ ମନେ ରଖିଦବ ଡାଟା ବି ମନେ ରଖିଦବ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଁ ଏଇଟା emergency ଟ୍ରାଏ credit କରିବି ଏଲାବୋରେଟ୍ guarantee କରିବାକୁ। scheme जोटा सर तो elaborate କରିବା ପାଇଁ ହଁ ହବ one district one port ତାକୁ elaborate କରିବା ପାଇଁ ହବ sir। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମାର୍କ୍ସ ପାଇଁ ଯଦି ୟୁପିଏସସି କଥା କହିବି ଦେନ୍ 10 ମାର୍କ୍ସ ରେ 2 ପେଜ ମିଳେ ତ ମୁଁ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଲେଖିଛି ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସେଟା ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିବାକୁ। ଧର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ୍ରେଡିଟ ଲାଇନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍ ଅଫ 5 lakh crores ଏଥିରେ କଣ ହବ ଏଥିରେ ଛୋଟଟେ ଲେଖିପାରିବେ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ଟୁ ଇଜି ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ କ୍ରେଡିଟ so that they can get timely and affordable credit so that they can grow। ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଛୋଟ ଲାଇନ କି 2 ଲାଇନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିହବ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ବୁଝିପାରିଲେ। ओके ମୁଁ ଖାଲି keywords ଗୁଡା ଆନ୍ସରରେ ଲେଖିଛି ଆଉ ମେନ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ବଡି କନକ୍ଲୁଜନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ କଣ ଆସିବା ଦରକାର ବଡିରେ କଣ ଥିବା ଦରକାର କନକ୍ଲୁଜନରେ କେମିତି ହବା ଦରକାର ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମେଣ୍ଟେନ ହେଲେ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋଟା ବି ମେଣ୍ଟେନ ହବ କାହିଁକିନା ଡାଟା ଆଉ ସ୍କିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ମନ ଥାଏ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯେତିକି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେତିକି ଲେଖି ବି ଦିଅନ୍ତି ବଟ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱେରେ ଲେଖିପାରିବନି ଦେନ୍ ସେ ଭଲ ମାର୍କ ଫେଚ୍ କରିହବ। ଠିକ ଅଛି ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। Second question टा purely static question टा so question होची how are the principles followed by erstwhile Niti Aayog different from those followed by erstwhile planning commission। simple straightforward question Niti Aayog और planning commission ର comparison କରିବାକୁ ପଚାରିଛି ସେ तो first लिखिदबा हम intro रे लिखिदबा कि both planning commission and Niti Aayog were set up to ensure planned development of India so that India can grow at a rapid rate। धीरे धीरे प्लान डेवलपमेंट ପାଇଁ ହିଁ ମୋଟିଭ ଥିଲା ଫର୍ମେସନ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଆଉ ନୀତି ଆୟୋଗ ର। सो तापर हम एमती बॉक्स बनैकी कंपैरेटिव वे रे लिखि परियो ताकि भलसे कंपैरिजन भी करियो आ आंसर देखिया भी भल लागियो तो केमती कंपैरिजन एमती पॉइंट गुडा कोन को लिखियो। नीति आयोग इज बेसिकली अ थिंक टैंक or advisory body so it is not given power to implement policies on states so mostly niti aayog ଗୋଟେ advisory body of think tank ଗୋଟେ planning commission on other hand it had the power to impose policies on states। our second point state governments play a proactive role thus ensuring cooperative federalism। niti aayog ର फॉर्मेशन बेसिक्स टा कोन थिला स्टेट भी इन्वॉल्व रहे प्लानिंग रे सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टा बूस्ट हो सेतरे और प्लानिंग कमिशन स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट हैव मच रोल टू प्ले इन्वॉल्व थिले बट बेसी रोल नथिला ताकर प्लानिंग रे। तापर थर्ड पॉइंट power of allocation of fund not given to Niti Aayog। Similarly, planning commission had the power to allocate fund। এটা funding रे difference कौन। Next point has provisions for appointment of part-time members did not have any such provisions। part-time members expert members provisions ଅଛି ନୀତି ଆୟୋଗରେ but planning commission ରେ ସେତେ flexibility ନଥିଲା। then fifth point ରେ CEO of ନୀତି ଆୟୋଗ appointed by PM ଆଉ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ସେକ୍ରେଟାରୀଜ ଅଫ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ appointed through usual process ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ୱେରେ ସେମାନେ appoint କରୁଥିଲେ। sixth under ନୀତି ଆୟୋଗ new post were created post କଣ କଣ ଥିଲା CEO vice chairperson ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ commissions consisted of full time members member secretary and deputy chairperson ତ ଏଥିରେ member
आउ तांको पोजीशन डिफरेंस कोन सेटा देखाई तो लास्ट को गोटे कंक्लूजन एंड करियो विथ द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग द प्लानिंग प्रोसेस हैज बीन मेड मोर इंक्लूसिव एंड मोर आउटपुट ओरिएंटेड माने रिजल्ट केमती आछि रिजल्ट को केमती बढ़े हबो सेही ओरिएंटेड मोस्टली एबे प्लानिंग से वे रे ही होउची बुझा पड़ला केमती आंसर टा लिखिबार अछि नीति आयोग और प्लानिंग कमिशन एटा प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन और एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टा बुझा पड़ला समझते कि यस सर यस सर Yes, sir. सर आ गोटे पॉइंट ऐड कर तो परिबा हाँ हाँ एथरे सर तमे बहुत एटा जस्ट मु खाली स्ट्रक्चर दोची बहुत पॉइंट ऐड करियो एथरे हाँ को नीति आयोग गोटे बॉटम अप अप्रोच और प्लानिंग कमिशन गोटे टॉप डाउन अप्रोच हम्म टॉप डाउन अप्रोच हाँ एथरे बहुत पॉइंट ऐड करियो मु जस्ट खाली गोटे 10 मार्क्स में किंतु गोटे स्ट्रक्चर हवा दरकार सेटा ही मु खाली कहूची बहुत पॉइंट्स ऐड करियो बहुत डाटा ऐड करियो बहुत एग्जांपल्स भी ऐड करियो तापर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन टा देखियो explain the employment scenario in India and suggest ways to boost employment तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो कोन एट प्रेजेंट रे इंडिया रे एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो टा कोन तापर सेकंड पार्ट होची सजेस्ट वेज करो जोथरे कि एम्प्लॉयमेंट आउ बढ़े हबो तो फर्स्ट इंट्रो रे हम लिखि करियो employment scenario is a dynamic scenario and it is ever changing according to the prevailing situation and condition obviously employment scenario टा dynamic change आज बढ़ुची काली कमी जिवो एमती टाइप रो रहइबो बॉडी केमती करबा बॉडी इंटर हेडिंग दे परिबा कि एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो ऑफ इंडिया तापर हमें देखबा कि एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो टा कोन इंडिया रे एबे तो फर्स्ट एथरे में डाटा यूज करबा अनएम्प्लॉयमेंट रेट केते अछि डिक्लाइन फ्रॉम 6% इन 2017-18 टू 4.1% इन 2021-22 एटा पीएलएफएस रो डाटा आ जदी यार लेटेस्ट डाटा मिलला देन आपण माने निजे निजे अपडेट करिवे सेटा मु जस्ट एज एग्जांपल देखौची सेमिति नंबर ऑफ सैलरीड जॉब्स कोन सैलरीड जॉब्स माने सैलरी पाउछन फिक्स सैलरी जो माने कथा होची टाइमली सैलरी पाउछन से माने करो कोन shrunk by 10 million since 2019-20 कोन पे पैंडेमिक इंपैक्ट में सैलरीड जॉब्स भी shrunk हो जाई कमी जाई छी तापर नेक्स्ट डाटा सर्विस सेक्टर अकाउंट्स फॉर हाईएस्ट जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज सर्विस सेक्टर समस्त जणा अछि सर्विस सेक्टर में सबुटू हाईएस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूची देन सेकंड फोर्थ पॉइंट एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर कोन सेक्टर कहबो सर हां डाटाटा कौन जदि सर कहलो मने न रहला सर केमति कोन डाटाटा मने न रहले कोन करबा डाटा सर हाँ डाटा बेसिक तो मन किछि रखे पड़े कारण एम्प्लॉयमेंट गोटे स्पेसिफिक टॉपिक सिलेबस रे अछि ना नै सर तो किछरा डाटा आपण मानू एम्प्लॉयमेंट मन को रखे पड़े मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेसिक मिनिमम तो मन रखिया पड़ियो काइना आंसर लिखला बेले डाटा और स्कीम किछटा यूज करिया को पड़ियो ओडिसा स्पेसिफिक इंडिया स्पेसिफिक किछटा डाटा और किछटा ये आपण माने गोटे करि परिबे कि सब जाक टॉपिक रो किछि किछि डाटा जोटी पाठ पढुछन सेठी गोटे A4 साइज पेपर रे मार देगी सामने रे लगे देबे बारंबार आखि पढुथबो आपण माने मन भी रखि दे पड़थिबो काइना घोषिबाटा ऑब्वियसली टिके माने टफर टास्क था जदि बारंबार देखिबे सेटा आपे आपे ब्रेन रे रिटेंशन हो जी सेटा ट्राई कर एम्प्लॉयमेंट A4 साइज पेपर रे लिखि रेट और लिटरेसी रेट एम्प्लॉयमेंट रेट लिटरेसी रेट सर ये दुईटा को एम्प्लॉयमेंट रेट केते अच्छा एथरे एम्प्लॉयमेंट रे आपण आ गोटे माने एग्रीकल्चर केते एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करछि सर्विस सेक्टर केते एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करछि आ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर केते एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करछि आ गोटे होछि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट केते टोटल रेट केते आ मेल मानकर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट केते फीमेल मानकर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट केते तो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक तीन चारटा डाटा आपण मन रख देले आपण एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आछले से डाटा गुडा यूज कर परिबे सर हां सर सर जो डाटा अछि गोटे हां धरने बच्चा अछि 45.6 अछि ताले हम ताको अप्रोक्स रे हां किछि लिखि परिबा कि माने पॉइंट खाली 10 मिनिट न देकी अप्रोक्स किछि करके लिखिले ठीक हबो अप्रोक्स रे लिखियो माने ठीक हबो न हबो कथा नै बट ट्राई करिवो एक्यूरेट डाटा ही लिखियो को लेटेस्ट डाटा लिखियो काइना एग्जाम तमे दोचो 23 रे आ तमे जदी डाटा लिखुचो 2019 रो आ माने जदी डाटा अवेलेबल नै ठीक अछि बट जदी डाटा ऑलरेडी अवेलेबल अछि आ तमे पुराना डाटा दोचो जोटा कि 2019 की 20 रो देन ऑब्वियसली गोटे खराब इंप्रेशन पड़ियो काना जो ईयर एग्जाम दोचो से ईयर डाटा गुडा अपडेट होबा चेष्टा करियो आ ट्राई करिवो एक्यूरेट लिखिया को डाटा କାହିଁକିନା ୟୁ ନେଭର ନୋ ଯେ ସେମାନେ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ତମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡାଟା ଦେଇଥିବ ଦେନ୍ ଅବଭିୟସଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ପଡିବ ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝା सर ପଡୁଛି
सर सेठी जदि हम मेंशन करबा Again, कि sir. ऑलमोस्ट समथिंग एग्जैक्टली न लिखि कि ऑलमोस्ट कौन कौन कहलो सर जो डाटा देबा सर हमें पॉइंट रे जो देबा हाँ सेठी तो हम जानि नथु सेठी ऑलमोस्ट हम मेंशन करि परिबो कि सर approximately almost ऑलमोस्ट something like this अप्रोक्सीमेटली पाखापाखि से डाटा कहीं डाटा तमे जो डाटा देते हुए तो सेई टाइम रे बढ़ी भी जाई थाई पारे किए जाने कना ऑब्वियसली टिके पुराना डाटा ही सब थाए तो हुए तो सेई टाइम रे बढ़ी जाई पारे बट जो सेटा ଗୋଟେ बहुत बड़ फ्लक्चुएशन होउची देन सेटा भूल हेजिवो ना बुझा पड़ुची सर सर तो सेटा कम डाटा जदि भी मन रखछो देन सब टॉपिक रो कम कम डाटा मन रखो बट एक्यूरेट डाटा मन रखिया चेष्टा करो सर सर ठीक अछि हाँ तापर एबे देखिबा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट केते मो स्क्रीन देखा होची समस्त के तो ना देखा जाउनी आ जूम करिवि yes sir ओके थैंक यू सर तापर बहुत लेबर छोଟ फोर्स ଅଛି ଆଉ एबे ଟିକେ ୱାଇଡ ହେଇଥାନ୍ତା ସାର୍ एबे देखा गला ହଁ ହଁ ठीक अछि का ହୁଁ ୟେସ୍ ସାର୍ ओके ओके सर ठीक आउ अछि टिके जूम तापर आउट करंतु सर टिके जूम आउट करिवि एबे विजिबल ना जूम इन करिवि ना जूम आउट करिवि जूम आउट सर जूम आउट स्क्रीन रे सर स्क्रीन रे तो जूम हे जाउची सर तो ऑटोमेटिकली ना स्क्रीन के जूम जण को हे देखा जाउची जाउनी तो आपण सेटा मैं पचाउची किछ इशू होची के अच्छा जण को तो सेटा मैं पचाउची एबे केमते ठीक देखा होउछ तो ना कोन करिवि अब ହଁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ठीक अछि स्टार्ट करियो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेल मानकर होची 57.5% एटा 2020-21 डाटा और फीमेल मानकर 25.1% 2021 तो एट क्लियरली जाना पड़ी जाउची कि फीमेल मानकर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम तापर नेक्स्ट वर्कफोर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर 90% माने टोटल जति की वर्कफोर्स अछंदी से माने 90% एम्प्लॉयड अछंदी अनऑर्गेनाइज सेक्टर तापर नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन कोन वेज टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया सेतरे कोन 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 स्टेप्स नहीं हबो जोथरे के एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करियो सिंपल पॉइंट लिखिबा इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना भलो हैला कल स्किल से माने पाई परिबे जदि भलो स्किल पाई पाले देन से माने एम्प्लॉयमेंट पे एलिजिबल हे परिबे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन रोड रेलवे पोर्ट्स माने इंफ्रास्ट्रक्चर जदि एम्प्लॉय माने इन्वेस्टमेंट हैला देन सेई सब जगह रे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हबो तो सेई पॉइंट स्ट्रेट लिखा है नेक्स्ट होची स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कौन ना लोअरिंग ऑफ टैक्सेस एंड इंटरेस्ट रेट यदि टैक्सेस लोअर कराला इंटरेस्ट रेट लोअर कराला देन ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर माने एनकरेज हेबे इकोनॉमी रे इन्वेस्ट करियाको और यदि से माने इन्वेस्ट करले इकोनॉमी रे देन ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हबो सिंपल कनेक्शन टा यही तब नेक्स्ट होची proper implementation of employment generation schemes like NGNREGA, PM कौशल विकास योजना माने स्किल प्रोवाइड कराबो ताकि से माने एम्प्लॉयमेंट में एलिजिबल हे पारे भलो से तब फिक्स पॉइंट होची प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हेले सेल्फ एम्प्लॉयड हेबे से माने एंटरप्रेन्योरशिप करिवे तापरे एई किछटा पॉइंट लिखला पर देन कंक्लूजन एंड करियो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज अ नेसेसरी स्टेप टुवर्ड्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड एंश्योर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ तो एठी आपण माने आउ आइडिया माने आउ स्कीम्स लिखि परिबे आउ जदि डाटा मन रखिबो सेटा भी लिखि परिबे आउ स्पेसिफिक किछि स्कीम जदि एम्प्लॉयमेंट रो भी जानिछ ना सेठी आउ ऐड करि परिबे एटा जस्ट गोटे स्ट्रक्चर टा बुझा पड़ला समस्त के सर आंसर टा ଆମେ सर ଆମ ମନରୁ ଲେଖି ପାରିବୁ हां सर पचर ମାନେ ଯେମିତି ପିଏମ ସ୍ୱନିଧି ସ୍କିମ୍ ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ हां ସବସିଡି स्कीम ଦିଆହଉଥିଲା मनरू माने स्कीम बुझी पाले माने जो स्कीम ऑलरेडी इंप्लीमेंट होची सेगुडा लिखिबो ना ଆଚ୍ଛା ହଁ ସାର୍ ମାନେ ଧର ସାର୍ ଆମେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏମିତି କରିକି ଆମେ ନିଜ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବୁ ନା ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବୁ ନା ଯୋଉ ବହି ଫହି ସେଇ ଟାଇପର ପଚାରୁଛି ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ଏଇଗୁଡା ଏଣ୍ଡ ନୁହଁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଅଛି 10 ମାର୍କ ରେ ମୁଁ ଆଉ ୟାଠୁ ଅଧିକା କେତେ ଲେଖିପାରିବି ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା କହୁଛି କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ଡିମାଣ୍ଡ ଟା କେମିତି ଆଡ୍ରେସ କରିହବ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ଆଉ ଓକେ ଡାଟା ସାର୍ ଆଡ କରିପାରିବେ ଆଉ ସ୍କିମ୍ସ ବି ଆଡ କରିପାରିବେ ଏତିକି ସ୍କିମ୍ସ ତ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ସ୍କିମ୍ସ ଅଛି ବୁଝା ପଡୁଛି ସାର୍ ତ ସେଇଥିରେ ଯୋଉଟା ମନେ ପଡିଲା ଆମେ ତାକୁ ସେଠି ଲେଖିଦବୁ ସାର୍ ହଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ରୁ ସେଥିରୁ ଅପଡେଟ ହେଇକି ଲେଖି ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଟ୍ ସେଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 4 ଦେଖିବା Question number 4 होची What are the reasons for introduction of FRBM Act 2003? Discuss some of the steps taken by Odisha government for better
बजेट मैनेजमेंट तो दीटा पार्ट क्वेश्चन एथरे भी कि एफआरबीएम कोन पई रीजन थिला तर इंट्रोडक्शन कोन आ ओडिशा गवर्नमेंट कोन स्टेप नै छनी बजेट मैनेजमेंट पई बेटर बजेट मैनेजमेंट में ओडिशा गवर्नमेंट कोन स्टेप नै छनी तो फर्स्ट एटा पूरा प्योरली स्टैटिक पार्ट तो एथरे बेसी डिस्कशन आ बेसी किछ नै कना स्टैटिक समस्त पढिथिबे या विषय तो FRBM Act was introduced by the government to improve the budget making process and ensure proper distribution of resources. तो simple FRBM Act कौन पे introduce कराया था सीट पे ही introduction लिखा है तब next होगी reasons for introduction of FRBM पचार जी क्वेश्चन से आई कौन reasons heading देगी direct लिखिया start कर दो first होगी ensure intergenerational equity by managing debt तो intergenerational equity management करे को माने एबे जदी लोन निया ହେଇଛି डेप्थ निया ହେଇଛି देन एमिति न हो कि एते अधिका डेप्थ निया जो कि ए जनरेशन जाएगी ता पर जनरेशन भी से डेप्थ तारो से माने लोन तारो इंटरेस्ट चुकौछनी आ तारो प्रिंसिपल अमाउंट एपन तो भी दउछनी सेमतिले फ्यूचर जनरेशन ताकर बेसी रिसोर्सेस नथिबो इन्वेस्टमेंट करिया को तो सेटा होची एंश्योर इंटर जनरेशनल इक्विटी नेक्स्ट पॉइंट होची इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यदि किछि ऑब्वियसली इकोनॉमी को रेगुलेट करिया को दीटा पॉलिसी अछि समस्त की जणा अछि गोटे होची फिस्कल पॉलिसी आ गोटे मॉनेटरी पॉलिसी तो दीटा जाको इंटरलिंक थांती तो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दी जन को सपोर्ट करी सब चलता तो अब जदी किछि गोटे मॉनेटरी पॉलिसी रे चेंज आसिला देन ऑब्वियसली हम फिस्कल पॉलिसी ता सेमिति हबा को पड़िबो ताकि से चेंज ता भल से रेप्लिकेट हे परिबो रियल लाइफ सिनेरियो तो सेटा ही इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी तापर सेकंड ए थर्ड पॉइंट eliminate revenue deficit and bring down fiscal deficit to manageable 3% of GDP by March 2000 एटा जेता एफआरबीएम एक्ट ऑन आइतला सेतेबेले तार मैंडेट थिला एटा सर एटा तो सेंट्रल गवर्नमेंट रो सर तो ओडिसा रे हां एमते किछि डाटा मु पाइल ना माने सेंट्रल नहीं एटा गवर्नमेंट रो 3% एफआरबीएम होची एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रे ना एफआरबीएम एक्ट हमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कशन करला पर देन हमें देखिबा स्पेसिफिक ओडिसा पय कोन स्टेप्स नि आइछ बेटर अच्छा बजट माने मैनेजमेंट जो रेवेन्यू डेफिसिट की नील करबा और फिस्कल डेफिसिट को ब्रिंग डाउन वी हैव टू ब्रिंग हां डाउन टू 3%। एटा सर 3% हमर ठीक ओडिसा रा किछि एमती अछि सर ओडिसा रा हाँ हमर ओडिशा स्टेट स्पेसिफिक भी अछि सेटा बजेट रे मिल जिवो ओडिशा स्टेट स्पेसिफिक ही अछि स्टेट स्पेसिफिक केते थिबा दरकार फिस्कल डेफिसिट सेटा भी अछि अच्छा सेई टाइम ओके कहली ना इकोनॉमी रो किछि भी डाटा ये करियर अछि देन बजेट और इकोनॉमी सब रो बहुत भलो डाटा मिलियो ओडिशा बजेट और ओडिशा इकोनॉमी सब लेटेस्ट डाटा सेठु मिलियो बुझा पड़लो सर हां सर ठीक है तापर नेक्स्ट पॉइंट देखिबा provide flexibility to central government to deviate from fiscal deficit target in case of unforeseen situation এটা রিসেন্ট ହେଇଥିଲା ଏବେ କୋଭିड 19 ରେ deviate ହେଇଥିଲା target ଟା ତ ଏମିତି deviation ପାଇଁ ବି provisions ଅଛି FRBM act ରେ ତାପରେ next ତାପରେ ओडिशा पार्ट स्पेसिफिक ओडिशा पार्ट रो आंसर करियर अछि स्टेप्स टेकन बाय ओडिशा गवर्नमेंट फॉर बेटर मैनेज बजेट मैनेजमेंट कोन स्टेप्स नि अछि फर्स्ट होची पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू बजेटिंग कोन पार्टिसिपेट माने की पार्टिसिपेट करा होछन बजेटिंग by inviting suggestions from public to suggestion नियाउछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन टू सजेशन नियाउछ एक्सपर्ट्स मानको सजेशन नियाउछ माने बजेटिंग बेले एमानको समस्त टू सजेशंस नियाउछ जेतो बजेट टा गोटे इंक्लूसिव बजेट हे परिबो तापर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर बजेट चाइल्ड बजेट न्यूट्रिशन बजेट ट्राइबल सब प्लान तो एमती स्पेसिफिक ताको ପାଇଁ ବି बजेट सेही मेन बजेट रे आसुची बट स्पेसिफिक किछटा फंड से मानको अलर्ट करा होची सो दैट से मानको स्पेसिफिकली ग्रो करी हबो से मानको तापर नेक्स्ट होची फिस्कल रिफॉर्म्स कोन कोन नाइ छि ओटा होची रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स रेट्स को रैशनलाइज कराइ छि तापर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल कराइ छि तापर ऑटोमेशन ऑफ टैक्स कलेक्शन ऑटोमेटिक डिजिटल वे रे टैक्स कलेक्शन को प्रमोट करा होची तापर ଆଉ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट रे कोन पब्लिकेशन ऑफ बजेट डॉक्यूमेंट्स किछि स्पेसिफिक बजेट डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराउची ओडिशा गवर्नमेंट को तरफ कोन कोन ना बजेट एट ए ग्लांस प्रोवाइड कराउची एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कराउची मीडियम टर्म फिस्कल प्लान भी प्रोवाइड कराउची तो एडा सब प्रोवाइड करले बेटर ट्रांसपेरेंसी रहउची अकाउंटेबिलिटी एंश्योर कराउची बजेटिंग प्रोसेस लोक माने जानि परछन कि कोन कोन जिंस केते फंड कोन एलोकेट कराउची तो इसमें ये सब डॉक्यूमेंट्स गुड़ा प्रोवाइड कराउची तर नेक्स्ट हमें कंक्लूजन एंड करि परिबा effective budgeting mechanism is a key to better resource distribution and ensure inclusive growth जदि भल से बजेटिंग होबो देन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन टा प्रॉपर हे परिबो और इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करि होबो सिंपल कंक्लूजन एंड करि होबो किछ असुविधा न बुझा पड़ला क्वेश्चन टा समझते यस
अच्छा ठीक अछि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिबा एटा भी गोटे प्रीवियस क्वेश्चन डाई क्वेश्चन होची जीएसटी विषय एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड जीएसटी हाउ इट हैज क्रिएटेड न्यू फेडरल टेंशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट मु जानजे सब समस्ते फर्स्ट पार्ट ता बुझी जाइथो बहुत इजीली सेकंड पार्ट ता बुझिया को कष्ट होइबो हां कि नहीं हाँ फर्स्ट पार्ट टा समस्त आंसर ठीक ही लिखियो समस्त को जणा भी थियो फर्स्ट पार्ट टा कोन बट सेकंड फेडरल टेंशन कोन सेटा ही इशू हितो देखियो हम कोन टेंशन हितला तो फर्स्ट जीएसटी रो इंट्रोडक्शन लिखियो जीएसटी is a comprehensive indirect tax on manufacturing, sale, and consumption of goods and services throughout the India. Simple indirect tax थिला जीएसटी जीएसटी रो मीनिंग ही हमें लिखि देले इंट्रोडक्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पछर कोन रैशनल बिहाइंड जीएसटी कोन पई जीएसटी होना हला फर्स्ट होची इज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट इज ऑफ डूइंग बिजनेस जदी टैक्सेशन टा इजी हबो आ बेसी सेतरे रेस्ट्रिक्शन नथिबो सिंपल वे टू पे टैक्सेस थिबो देन इज बिजनेस प्रमोट हबो ना नहीं बिजनेस सेक्टर माने से माने इजीली टैक्स देई परछनी आ टैक्स रेगुलेशन ताको पर बेसी इंपोज होउनी फ्लेक्सिबिलिटी ताकर अछि देन ऑब्वियसली से माने इच्छुक हेबे इन्वेस्टमेंट करे को इकोनॉमी जदी इच्छुक हेले देन इज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हबो सेकंड पॉइंट improve indirect tax collection इवेजन जो होउतला सेटा कम करे हबो जीएसटी पे सेटा नेशनल थिला जीएसटी प्रोडक्शन करे तापर रेवेन्यू जनरेशन करि हबो states which guarantee states a 14% compounded annual growth rate in their GST revenue एटा स्टेट मानको ପାଇଁ भी जीएसटी पर कोन मेरिट सेटा एक पॉइंट रे लिखा है तो फोर्थ होची ट्रांजिशन टू न्यू सिस्टम टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन जीएसटी टा गोटे न्यू सिस्टम थिला कोन पे टैक्स इवेजन टा प्रिवेंट करिया को जदी टैक्स इवेजन कम हैला देन ऑब्वियसली गवर्नमेंट कैन जनरेट मोर रेवेन्यू if government generates more revenue then government can invest more in infrastructure and if government invests more in infrastructure then obviously we will be having a greater speed of economic growth simple next होची promote cooperation in the sense cooperative federalism state और center दिया जाको मिसी डिसाइड कराइता स्टेट्स मानकर भी ये मत निया हितला कि हां टैक्स इंट्रोडक्शन करा हबो तो सेतरा कोन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी प्रमोट हितला तापर नेक्स्ट देखियो तापर नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन फेडरल टेंशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट जो जीएसटी इश्यू कोन जीएसटी रिलेटेड इश्यू हला कि जोतमे फेडरल टेंशन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट रे जनरेट हला এটা মোস্ট এই ইস্যুটা মোস্টলি স্টার্ট হয়েছিল কোভিড-19 টাইমরু তো কোভিড-19 had an impact on GST compensation fund which created some federal tension GST compensation fund जोथरे कि स्टेट्स मानको compensation प्रोवाइड करा होतला सेथरे किछु इश्यू जनरेट हेतला जोथि पय कि फेडरल टेंशन डेवलप हेता सेंटर और स्टेट भितर कोन कोन सेथरा हम देखि दबा फर्स्ट होची रेवेन्यू शॉर्टफॉल COVID-19 had an impact on the economy so GST collection decreased so if GST collection decrease then shortfall of revenue hela na nahi jodi shortfall of revenue hela then center mane tanga compensation paileni तो से माने ऑब्वियसली डिमांड करथले मोर मनी बट जेहेतु कोविड-19 हे गला देन इकोनॉमी डाउन हे गला जीएसटी कलेक्शन भी कम हे गला तो सेंटर्स माने स्टेट गवर्नमेंट जते एक्सपेक्ट करथले ताको सेती कंपनसेशन मिलला तर नेक्स्ट डिलेड कंपनसेशन तो शॉर्टफॉल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन हैला तले कोन हला जदी शॉर्टफॉल हैला देन ऑब्वियसली से मानको स्टेट मानको पेमेंट भी डिलेड हैला कंपनसेशन फंड रु सेटा गोटे इशू हैला फेडरल इशू हैला तबरे नेक्स्ट होची एक्सटेंशन ऑफ कंपनसेशन पीरियड बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट्स डिमांड करूथले ड्यू टू कोविड-19 की कंपनसेशन फंड जति कंपनसेशन जो प्रोवाइड करा होता ताकू ता टाइम एक्सटेंड करा जो माने अधिक टाइम पन तो प्रोवाइड करा जो जेहेतु कोविड-19 बहुत बड़ इंपैक्ट पकेइतला इकोनॉमी ऊपर और टैक्स कलेक्शन ऊपर से डिमांड करथिले बियॉन्ड 2022 कंपनसेशन ता प्रोवाइड करा जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिमांड करथिले तो एई किछिटा रीजन पे फेडरल टेंशन डेवलप होइतला बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट तापर नेक्स्ट एतिके लिखला परे देन कंक्लूजन लिखियो फर्दर स्टेप्स शुड बी टेकन बाय प्रॉपर कंसल्टेशन विद द स्टेट्स to reduce the federal tension further steps should be taken by proper consultation with the state to reduce the federal tension simple decision making रे स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करा हबो ताकि कॉन्फ्लिक्ट बेसी न हुए और फेडरल टेंशन ता रिड्यूस हो जाए सिंपल कंक्लूजन एमती करके लिखियो बुझा पड़ला समझते कि यस सर सर हाँ तो सेकंड पार्ट टा मोस्टली समझते को इश्यू इथो मु जानि तो सेकंड पार्ट एमती लिखियो हबो तापर नेक्स्ट एटा आउट ऑफ प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ ऑफ दिस बजट्स तो समस्त ही जाना अछि एटा मु एते डिटेली डिस्कस करबिनी कैपिटल बजट कोन रेवेन्यू बजट कोन
तार कंपोनेंट्स कौन प्राइमरली को जिनस गुडा को कैपिटल एक्सपेंडिचर कुआ जाए कि कैपिटल रिसीव कुआ जाए को जिनसटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुआ जाए कि रेवेन्यू रिसीव कुआ जाए से जिनस ही सब जाक एथरे लिखा है ठीक अछि तो सेमिति गोटे कंपैरेटिव वे रे दीटा तक आंसर लिखब आ एटा मते इसको डिस्कस करूनु कान प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन एथरे कुछ डिस्कस करियार नै then next question देखियो question number 7 कौन पचारछि investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth discuss ए क्वेश्चन टा केत जण को बुझा पड़ला भल से कि कोइ परबो बिलिंग टा क्वेश्चन टा बुझा सर जो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर करछुन सेटा भी गोटा कैपिटल एक्सपेंडिचर पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर गले सेटा लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहइबो हमर हां रोड कैपिटल रेल एक्सपेंडिचर टा ट्रांसपोर्ट मोस्टली लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पाई इंफ्रास्ट्रक्चर More रोड employment रेल generation. ट्रांसपोर्ट सबुतरे सर हां कैपिटल इन्वेस्टमेंट माने किछि एसेट जदी क्रिएशन होउछि देन सेटा लॉन्ग टर्म पे क्रिएट होना एबे जदी गोटे बड़ बहुत लंबा रास्ता क्रिएट हल देन सेटा बहुत दिन पे एग्जिस्ट करिवो ना एमिति नै कि गोटे वर्ष रे ये जो तो सेटाई सर मोर so गोटे it will be डाउट थिला having सर सर गोटे जो हमर जो सेल हरिका जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो फैक्ट्री सेटअप हेतला सेटा कोन में सर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रे ये करिवो ना सर सेटा को इन्वेस्टमेंट रे जीवो बड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ जीवन स्टील एसेट क्रिएट हेलानी कि नहीं तो आमे तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर रेल रोड इलेक्ट्रिसिटी और सर पोर्ट को आमे नौचु ना सर एटा को भी नबो ता भीतर सर हाँ एटा भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हेला ना एसेट अच्छा फॉर्मेशन हेला ओके ओके सर एसेट फॉर्मेशन हेला माने एटा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट सेक्टर भी तो क्रिएट करूछ ना इंफ्रास्ट्रक्चर हां कि नहीं बुझे प्राइवेट सेक्टर गोटे फैक्ट्री सेटअप कला देन सेटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हेला कि नहीं सर यस सर तो सर तो से ये सब जिनसे इंफ्रास्ट्रक्चर जेमिति धर कॉलेजेस तयारी होची मेडिकल कॉलेजेस ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर जीवो सेटा गलानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर गोटे अछि ना नहीं हॉस्पिटल सोशल स्कूल हाँ एटा सर सोशल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ ता ଆଜ୍ଞା राइट हाँ ସେଟା ବି ଥିବ तो କାରଣ सेथरे ଗୋଟେ जीवन ହ୍ୟୁମାନ୍ सेटा ରିସୋର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଅଧିକା ओके सर हाँ से ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट होची और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होची तो सेटा लॉन्ग टाइम पे भी रहउची एसेट फॉर्मेशन होची बिल्डिंग तयारी होची एसेट गोटे तो सेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है ठीक अछि ए क्वेश्चन टा के बुझी पाला मते सेटा खाली को सर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ए दुइटा भितर डिफरेंस कोन सर मैन्युफैक्चरिंग और माने इंफ्रास्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 1 और एबे कर क्वेश्चन भितरे सर मोस्टली डिफरेंस कोन ठीक बुझौची एबे जदी आपण गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कले इंफ्रास्ट्रक्चर माने कोन गोटे फैक्ट्री सेटअप कले बुझा पड़ला गोटे कार फैक्ट्री सेटअप हला सेटा कोन हला ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର Infrastructure. हां से कार फैक्ट्री रे कोन प्रोडक्शन होबो कार तो सेटा कोन Specific हला goods. हां किछि भी That सेटा कोन हला manufacturing. बुझा पड़ला Manufacturing. डिफरेंस कोन Sir. मैम बुझा पड़ला आपन Sir. सर प्लीज आउट रे हां एबे देखंतु गोटे कार फैक्ट्री तयारी हला तो सेटा कोन हला इंफ्रास्ट्रक्चर हला कि नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हला ना नहीं सर हेला हां से कार फैक्ट्री रे कोन प्रोडक्शन होची कार प्रोडक्शन होची तो से जदी प्रोडक्शन सेटा कोन हला प्रोडक्शन टा कार सर मैंने कार टा कोन होची मैन्युफैक्चर होची ना नहीं फैक्ट्री रे जी हां सर बुझा पड़ला इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंस कोन सर इकोनॉमिक ग्रोथ पई का मैन्युफैक्चरिंग रो आउ इंफ्रास्ट्रक्चर रो कोन अलगा अलगा तांकर ये रहबो कि सर माने जो पॉइंट टा पॉइंट अलगा लागोनी काने दीटा जाको Growth लिंक ପାଇଁ एबे देखंतु मु सिंपल आपन बुझे देउची एबे गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हला ठीक अछि एबे जदी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हला देन ऑब्वियसली से इंफ्रास्ट्रक्चर सब इंफ्रास्ट्रक्चर रु मैन्युफैक्चर होवेनी बट किछटा इंफ्रास्ट्रक्चर रु मैन्युफैक्चरिंग हुए फॉर एग्जांपल एने रोड गोटे क्रिएट हला रोड रु कोन किछि मैन्युफैक्चरिंग हबो कि ନାଇଁ सर ସେଇଟା किछि completely हबोनी ହଁ। हां बट तो से जदी रोड टा मु रोड रे एग्जांपल नै को जदी रोड टा क्रिएट हला देन ऑब्वियसली रोड तयार करिया को लोक माने एम्प्लॉयमेंट पाइबे ना नै से रोड गोटे बना होची तो सेडे लोक माने काम करिवे ना नै ହଁ सर जदि से माने जदि काम करले देन से माने एम्प्लॉयमेंट पाइले ना नै एम्प्लॉयमेंट जदि पाइले से माने को वेजेस भी मिलिबो ना नै सर जदि वेजेस मिलिला देन से माने इकोनॉमी रु कंज्यूम करिवे ना नै
सर କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବେ, ଯାଇକି କିଣିବେ ନା ନାହିଁ? ଅବଭିୟସଲି ତାଙ୍କ ଡେ ଟୁ ଡେ ନିଡ୍ସ ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ ସେ ପଇସା ପାଇଲେ ଦେନ୍ ସେ ଡେ ଟୁ ଡେ ନିଡ୍ସ ପାଇଁ ଜିନିଷ କିଣିବେ। ଆଉ ଆମେ ଜିଡିପି ମାନେ କଣ ଜାଣିଛେ? ଜିଡିପି ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କନଜମ୍ପସନ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଜିଡିପି ର ଫର୍ମୁଲାରେ? सर ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ୱେଜେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ମାର୍କେଟ ରୁ ଜିନିଷ କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆମର ଜିଡିପି ବଢିବ ନା ନାହିଁ? सर ओडिनो ବୁଝାପଡିଲା କେମିତି ଜିନିଷଟା କଣ? आज्ञा ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ ରହିଲା ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଟିକେ ନର୍ମାଲ। ପଚାର। କାଟାଗୋରାଇଜେସନ ସାର୍ କାଟାଗୋରାଇଜେସନ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ସାର୍ ସେଲ୍ ର ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ର, ତ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ହଁ କୁ କୋଉ କାଟାଗୋରୀ ରଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କୁ କୋଉ କାଟାଗୋରୀ ରଖିବା ସାର୍? ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରେ ଏକା କୋଉ କାଟାଗୋରୀ ମାନେ ରଖିବା? ଦେଖ ମୁଁ ନର୍ମାଲି କହୁଛି ଏବେ କି ତମେ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ରୁ କଣ କେମିତି ଆମ ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋଥ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁ ଆମ ଇକୋନୋମି କେମିତି ଗ୍ରୋଥ ହବ, ସେୟା ପଚାରୁଛ ତ? ୟେସ୍ ସାର୍। सर ये क्वेश्चन रे सर मोर कंफ्यूजन कौन हो गला ना सर, जमिति आर्टिकल रे लिखा हुए कि वी हैव नॉट गुड इंफ्रास्ट्रक्चर सो वी आर और मैन्युफैक्चरिंग इज लो। हमरो ହୁଁ इंफ्रास्ट्रक्चर नाही बोले कि हमर एटी कंपनीज आसु नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं। तो मु ହଁ सेटा भाबी दे कि इंफ्रास्ट्रक्चर माने तमर रेल रोड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी ଆଉ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କି, ଆଉ ହଁ ଆପଣ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି କେମିତି ବୁଝେଇଦେବି ସେଟା। ଆଗେ ସାର୍ ସାର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦଉଛି ହେଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲେ କେମିତି ଆମ ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋ ହଉଛି, ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ କେମିତି ଆମ ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋ ହଉଛି। ଏବେ ସିମ୍ପଲ କଥା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ର ହଉଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି ହଉଛି, ଦେନ୍ ସେଇଥିରେ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍ କି ନାଇଁ? ସିମ୍ପଲ କଥା, ଯଦି ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ କଣ ସାର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସର୍ଭିସ ସର୍ଭିସ ଯଦି ସାର୍। ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲେ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଗ୍ରୋ କଲା ନା ନାଇଁ? ସାର୍ ଯଦି ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଗ୍ରୋ କଲା, ଡକ୍ଟର ମାନେ ତାପରେ କଣ, ସେମାନେ ନିଜେ ସର୍ଭିସ ଯଦି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳୁଥିବ ନା ନାଇଁ? ସାର୍ ଯଦି ସାଲେରୀ ମିଳିଲା ଦେନ୍, ଯଦି ଭଲ ସାଲେରୀ ମିଳିଲା ଦେନ୍ ସେମାନେ ଯାଇକି କନଜ୍ୟୁମ କରିବେ ନା ନାଇଁ ଆମ ଇକୋନୋମିରୁ ଜିନିଷ କନଜ୍ୟୁମ କରିବେ ନା ନାଇଁ? କଞ୍ଜପ୍ସନ ବଢିବ ନା ନାଇଁ ସାର୍ ତାଙ୍କର? ଯଦି ସାର୍ କଞ୍ଜପ୍ସନ ବଢିଲା ଦେନ୍ ଜିଡିପି ବଢିବ ନା ନାଇଁ? ସାର୍ ବୁଝା ପଡିଲା? ସାର୍ ସାର୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଡାଇମେନସନ। ଅଲଗା ଡାଇମେନସନ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିବାକୁ ଏଟା ବୁଝୁଛି। ଏବେ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ? ଗୁଡସ୍ ଆଣ୍ଡ स्टील ସର୍ଭିସ। स्टील ହଁ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ଯଦି ଷ୍ଟିଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ନା ନାଇଁ? हाँ सर ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟିଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା, ଷ୍ଟିଲ ତ ଏକ ତ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ମାର୍କେଟରେ କନଜ୍ୟୁମ ହବ, ଆଉ ସେଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବି ହବ ନା ନାଇଁ? ବୁଝା ପଡୁଛି? हाँ सर ବୁଝା ପଡୁଛି? ହଁ ତ ଯଦି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ, ଦେନ୍ ସେମାନେ କଞ୍ଜପ୍ସନ ନିଜର ବଢେଇବେ ନା ନାଇଁ? ଯଦି କଞ୍ଜପ୍ସନ ବଢେଇଲେ ଦେନ୍ ଜିଡିପି ବଢିବ ନା ନାଇଁ? ତ ଏନିୱେରେ ଜିଡିପି ବଢିପାରେ। ଦେନ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଯଦି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବଢିଲା ଦେନ୍ ଆମର ଜିଡିପି ବଢିବ ନା ନାଇଁ? ମତେ ସିମ୍ପଲ କଥା କୁହ, ଜିଡିପି ଫର୍ମୁଲାରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଟାର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସାର୍ Yes, ସାର୍ sir. ଏଇଟା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜିଡିପି ତ ବଢିବ ସାର୍। ଡାଇରେକ୍ଟ ଜିଡିପି ତ ବୁଝା ପଡିଲା ତ କେମିତି ଏଇ ଦିଟା ଯାକରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ କେମିତି ଆମ ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋ କରୁଛି ବୁଝା ପଡୁଛି? ସାର୍ ସାର୍ ଏବେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ ନା ନାଇଁ? ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ନର୍ସେସ ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ ଜିଡିପି କୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବେ, ବୁଝା ପଡିଲା ନା ନାଇଁ? ସାର୍ ସେଇଆ ତ ଆଇଡିଆ, ଏମିତି ହିଁ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଏମିତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ ଗ୍ରୋ ହେଇପାରିବ, ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କି ଅଲଗା କୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଭଲଭ ସେଇଥିରେ ବି ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ମିନିଂ ସିମ୍ପଲି ହଉଛି କି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର ରାପିଡ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ। ସିମ୍ପଲ କଥା, ଯଦି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଦେନ୍ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରମୋଟ ହବ। ବୁଝିଦେଲେ କେମିତି? ଏଠି ଅଲରେଡି ଆମେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି କେମିତି ୱେରେ ହେଇପାରିବ, ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଦିଟା ଯାକ, ବୁଝା ପଡୁଛି? The next introduction ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କି investment in infrastructure is a necessary to meet the dual need of our Indian economy, that is to have a rapid growth
with simultaneously ensuring inclusive growth. तो जदि investment in infrastructure हमें करिबा then rapid growth भी हेई परिबो then simultaneously inclusive growth भी achieve करि परिबा हम। तो एथरे गोटे भलो फ्लो चार्ट माने जोटा एग्जाम में अपन ड्रा करि परिबे फ्लो चार्ट ड्रा करि परिबे। तो हमें नेक्स्ट बॉडी स्टार्ट करछे हाउ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कैन एंश्योर रैपिड इकोनॉमिक एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सिंपल क्वेश्चन जहाँ पचार से आई हेडिंग देके हम स्टार्ट कले। तो एथरे ए फ्लो चार्ट आपण चाहिले बने परिबे। तो हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर जदि होउची इन्वेस्टमेंट होउची इकोनॉमी रे देन कोन होबो हमें फर्स्ट कोन पढितले मल्टीप्लायर इफेक्ट होबो ना नहीं यदि इन्वेस्टमेंट होउची इकोनॉमी रे गोटे जगह रे इन्वेस्टमेंट होउची तार इंपैक्ट बहुत जगह रे पड़िबो ना नहीं ग्रोथ बहुत जगह रे जनरेट होबो ना नहीं। यस सर। तो सेमिति जदि मल्टीप्लायर इफेक्ट हला देन इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई होबो। यदि डिमांड बहुत जगह रे इन्वेस्टमेंट होउची बहुत लोक एम्प्लॉयमेंट पाउछनी और सेठू से माने वेजेस पाउछनी से माने जॉब पाउछनी पैसा पाउछनी देन ऑब्वियसली जदि से माने किछि जिंस अर्न करछन देन से माने डिमांड भी तांकर धीरे धीरे बढ़ी चलिबो और डिमांड जदि बढ़ुची देन फैक्ट्री माने कोन करिवे सप्लाई भी बढ़िया को चेष्टा करिवे फैक्ट्री माने सप्लाई बढ़िया को चेष्टा करिवे माने कोन प्रोडक्शन बढ़िया को चेष्टा करिवे और जदि सेमिति होउची देन कोन होबो हायर कंजप्शन होबो जेहेतु डिमांड बढ़ुची और एक्सपेंडिचर एंड हायर इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंडिचर। सिंपल कथा एक इन्वेस्टमेंट भी बढ़िबो डिमांड भी बढ़ुची तो कंजप्शन भी बढ़िबो देन जदि एमिति होउची देन कोन होबो डायरेक्टली हम ऊपर देखिथिले कि जीडीपी ग्रोथ होबो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होबो और जदि ए दीटा होउची देन इंक्लूसिव ग्रोथ होउची ना नहीं जदि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होउची जीडीपी ग्रो करची देन ए टाइप रो ग्रोथ कोन इंक्लूसिव ग्रोथ की नहीं। यस सर। बुझा यस पड़ुची सर। इस फ्लो चार्ट पूरा बुझा पड़ला जदि जीडीपी ग्रो करची तो ऑब्वियसली जदि जीडीपी ग्रो करची गवर्नमेंट पाखरे मोर रिसोर्सेस थिबो फर्दर इन्वेस्टमेंट करिया को एक्सपेंडिचर फर्दर इन्वेस्टमेंट करिवे फर्दर एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर करिवे इकोनॉमी रे तो साइकिल टा एमती कंटिन्यू हो। तो एबे हमें कोन देखे देले क्वेश्चन जहां पचार थिला इंक्लूसिव ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ को कंबाइन करके गोटे फ्लो चार्ट रे देखे देले तो फर्स्ट पार्ट हम एड्रेस कर देले देन आउ कोन होबो जदि सेमिति इन्वेस्टमेंट कराउची इंफ्रास्ट्रक्चर केमिति इंक्लूसिव ग्रोथ आउ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करियबो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हैला देन जदि इफ इंफ्रास्ट्रक्चर रे इन्वेस्टमेंट होची देन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट की हबो कि नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर माने कोन एबे जदि भलो रोड तयारी होची ताले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमियो नहीं सिंपल कथा मते को। यस सर। यस सर। ट्रांसपोर्टेशन इजी होबो त ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपनी रे कम हो जदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होची देन कंपनी रो कोन प्रोडक्टिविटी बढ़िबो ना नहीं और जदि प्रोडक्टिविटी बढ़िबो देन से ऑब्वियसली डिमांड को सैटिस्फाई करेबो आउ अधिका प्रोडक्शन करि परिबो आ जदि अधिका प्रोडक्शन करला देन कोन होबो इकोनॉमिक ग्रोथ होबो ना नहीं। यस सर। यस सर। बुझा पड़छ जो फ्लो चार्ट बनाई जे केमिति आगु को फर्दर को प्रोसीड करूची। यस सर। यस सर। हाँ तापर नेक्स्ट केमती हबो सेकंड पॉइंट इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जोटा कि हम हॉस्पिटल स्कूल ए सब जिंस देखथिले जदि इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर हैला देन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एजुकेशन सेक्टर हबो ना नहीं और जदि ए दीटा हैला देन लोक माने स्किल पाइले एजुकेशन पाइले भलो हेल्थ सर्विसेज पाइले देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हबो ना नहीं। यस सर। जदि यस सर। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैला और समस्त जण जे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैला कोन हबो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हबो इंक्लूसिव ग्रोथ भी हबो। बुझा पड़छ केमिति सर। यस सर। हाँ तो एई एमिति फ्लो चार्ट गुडा एग्जाम रे ड्रा करियो बट एगुडा को ट्राई करिवो कि मु एटा तुमको बुझिया को फ्लो चार्ट बनै बट तुम ट्राई करियो फ्लो चार्ट बनेला पर तळे टिके बुझेवा को ताकि एग्जामिनर जे चेक करियो से जानि परिबे कि फ्लो चार्ट कहा विषय रे अछि कनेक्शन टा केमिति तमे देखौछो ठीक आज्ञा अछि। सर। देन तापर नेक्स्ट पार्ट इश्यूज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जदि इन्वेस्टमेंट होउची सेथरे इश्यूज कोन होउची इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग रे इश्यूज कोन होउची कोटे तो फर्स्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत हे जाउची तापर सेकंड एब्सेंस ऑफ वाइब्रेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट हमरो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट रो शेयर बहुत कम तो कंपनीज माने डायरेक्ट मार्केट रो पैसा बेसी उठे पारनांती दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन बैंक्स जदि हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को बूस्ट करिवा देन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी बूस्ट होबो। तापर नेक्स्ट होची लीगल एंड प्रोसीजरल इश्यू कौन लीगल एंड प्रोसीजरल इश्यू होची एक तो एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्रॉब्लम होची आउट होची लैंड एक्विजिशन जब धरो कु जगह रे किछ गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हबो देन ता पूर्व कोन लैंड एक्विजिशन करा जाय से लैंड एक्विजिशन रे भी इश्यू होची तो ए सब किछटा जिंस पई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कमी जाउची। देन हमें तापर नेक्स्ट एटी तुम बहुत सारा स्किल्स भी ऐड करि परिबो
कौन मु स्कीम्स ऐड करनी मु जस्ट बेसिक्स बुझाई खाली कौन स्टेप्स टेकन कौन स्टेप्स नहीं एक तो पब्लिक 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 प्राइवेट पार्टनरशिप करा होची देन वायबिलिटी गैप फंडिंग जोटा कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करची प्राइवेट सेक्टर को भी ऐड करछनी सेतरे तापर नेक्स्ट नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन एटा सेटअप करा होची ताकि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टा बूस्ट करी हो तो एटा किछिटा स्टेप अछि अब फर्दर तमे चाहिले आ अधिक स्कीम्स भी ऐड कर परियो किछ असुविधा नहीं बुझा पड़ला हाँ जिनसटा सर पूरा एइथिरे इंक्लूसिव ग्रोथ रा अलगा डेफिनेशन देखि ताको आथर लिखिया को होबो ना दरकार नै सेटा ए क्वेश्चन रे आमे डायग्राम रे ऑलरेडी देखे देछ ना केमिति इकोनॉमिक ग्रोथ भी हबो इंक्लूसिव ग्रोथ भी आगे हबो तो इंक्लूसिव ग्रोथ रा सेपरेट डेफिनेशन देबा दरकार नै सर ए क्वेश्चन रे पर्टिकुलरली डेफिन ना इस क्वेश्चन ने पचारछि कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर केमिति इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ को डेवलप करिवो आमे क्वेश्चन नो जिसटा को बुझिया को चेष्टा करिवा ना आगे काने क्वेश्चन डायरेक्टली पचारने कि इंक्लूसिव ग्रोथ विषय रे से पचारछि कि जदि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हबो ताले इकोनॉमिक ग्रोथ भी हबो इंक्लूसिव ग्रोथ भी हबो क्वेश्चन माने से सर हमें इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कंबाइन करके लिखि देछे कि इन्वेस्टमेंट करले केमिति इकोनॉमिक ग्रोथ भी हबो साइमल्टेनियसली इंक्लूसिविटी भी आनी हबो और आगे तापरे आ गोटे फ्लो चार्ट भी बनै के देखि देछे सर सर देन तापर पॉइंट लिखो इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रे कोन इंक्लूसिव ग्रोथ भी होउची इकोनॉमिक ग्रोथ भी होउची सेटा होजे कथा ठीक अछि नेक्स्ट तापर क्वेश्चन नंबर 8 ता देखियो क्वेश्चन नंबर 8 कोन क्वेश्चन अछि एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन कंपनीज ओन्ड बाय इंडिया ये क्वेश्चन टा मेजॉरिटी पिला ठीक लिखि नांदी किए मते कहि परियो क्वेश्चन टा कोन हबो एथरे आंसर माने बॉडी रे कोन आसीबो मेजॉरिटी पिला एटा ठीक लिखि नांदी ठीक लिखि नांदी माने अधा लिखछन आंसर कंप्लीट आंसर टा लिखि नांदी मते के कहि परियो एथरे कोन आसी अधिक जिंस कथा सर মই ତ ଲିବରାଲାଇଜେସନ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡାକ ଇଣ୍ଡିଆନ ପିପଲ ମାନେ ଓନ୍ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ କେମିତି ପଡିଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛ मेजॉरिटी पिला लिखिଛନ୍ତି ଖାଲି पॉजिटिव इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट विषय केही लिखि नाହାନ୍ତି इंपैक्ट तो दीटा पड़िଥିଲା ना पॉजिटिव भी पड़िଥିଲା नेगेटिव भी पड़िଥିଲା बट मेजॉरिटी ऑफ यू हैव रिटन ओनली पॉजिटिव इंपैक्ट्स तो एथरा में दीटा तक बैलेंस्ड वे आंसर टा लिखिबा रियल सिनेरियो जहा थिला फर्स्ट हमें लिखि परिबे कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज द रिलैक्सिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन in a country to allow for private sector companies to operate business transaction with fewer restriction simple liberalization definition dai lekha heichi और किछ नहीं तापर नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन है डायरेक्ट जहा पचार दे इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन कंपनीज सॉफ्टवेयर बीपीओ केपीओ एलपीओ इंडस्ट्रीज सॉ अ बूम इन इंडिया से टाइम रे एगुडा ग्रोथ करथिला तो ए जिंस ग्रोथ हेले कोन इंपैक्ट हेतला एक्सपोर्ट ऑफ दिस सर्विसेज इंक्रीज्ड व्हिच लेड टू द इंक्रीज इन इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स सिंपल नेक्स्ट होची टेलीकॉम सेक्टर रे कोन हितला बिफोर लिबरलाइजेशन दिस सेक्टर वाज अंडर गवर्नमेंट बट आफ्टर लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर एंटर्ड एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फर्दर इंप्रूव एग्जांपल मॉडर्न डीटीएच सर्विस जो डीटीएच सर्विस प्रोवाइड करा होची से सर्विस गुडा फर्दर डेवलप हेतला नेक्स्ट होची एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर रे कोन रोल ई माने लिबरेशन कोन इंपैक्ट पड़थला with the coming of private players there was introduction of modern technology in both of these sectors but the services became costly माने modern technology आस्थिला digitization हेतला but service गुडा costly हे जेतला नेक्स्ट वे ए इंपैक्ट देखले पर तबे देखले सम ऑफ द नेगेटिव इंपैक्ट्स कोन पड़थिला लिबरलाइजेशन पर फर्स्ट होची इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आस्थिला दिस हैम्पर्ड द बिजनेस ऑफ इंडिजिनियस लोकल कंपनीज इंस्टेबिलिटी आस्थिला बहुत सारा एफडीआईज आस्थिला फॉरेन कंपनीज भी आसी गेले तो स्लाइटली मार्केट रे टिके इंस्टेबिलिटी आस्थिला जोटा कि हैम्पर कला इंडिजिनियस माने लोकल इंडस्ट्रीज जोड़ा थिले सेमान को अफेक्ट कला नेक्स्ट होची इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी आस्थिला लिबरलाइजेशन पई तो सेथरे कोन हला ड्यू टू रैपिड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी सम ऑफ द एमएसएमईज were not able to adapt तो बहुत सारा एमएसएमईज एडवांस टेक्नोलॉजी संगे अडैप्ट हे पारे जदि अडैप्ट हे पारले देन ऑब्वियसली सेने मार्केट रे सर्वाइव करि पारलेनी और सेमाने क्लोज्ड हे गल एटा गोटे इंपैक्ट पड़ला नेक्स्ट होची एक्विजिशन एंड मर्जर एटा कोन ना इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम बिगर कंपनीज लेड टू द मर्जर ऑफ स्मॉलर कंपनीज इनटू लार्जर वन तो बड़ बड़ कंपनी जतले आसीले देन ऑब्वियसली कंपटीशन मार्केट रे जनरेट होला तो छोट छोट कंपनी माने जेहेतु वायबल हे पारलेनी सेमाने बड़ कंपनी से तो मिसी गले तो ए सब किछ नेगेटिव इंपैक्ट थिला इकोनॉमी ऊपर लिबरलाइजेशन पे तापर नेक्स्ट हमें लिखि परिबा conclusion है कि liberalization has impacted the companies both in a positive and negative way but with adaptation of good governance techniques we can further improve the benefits of liberalization बड़े positive नोट रे हमें conclusion टा end कर ले बुझा पड़ला समझने की
Yes, sir. ହଁ ତ ଏଥିରେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଲେଖିବାର ଅଛି, ମାନେ କୋଉ ପରେ କାହା ପରେ କଣ ଆସିବ, ଫ୍ଲୋ ଟା କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହବ ଆନ୍ସର। ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇହବ? ଟେଲିକମ୍ ଦେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁ ଦେଇପାରିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ସାର୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଦେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍ ଏପିଜି ରିଫର୍ସଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ କଣ ପଡୁଛି ସେଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଭଲ ହଉଛି। କଣ ସାର୍ କଣ କହିଲ? ଏଲଜି ରିଫର୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍, ହଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଥିଲା ନା ଲିବରାଲାଇଜେସନ ପାଇଁ, ସେମାନେ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन ଦେଖିବା। ମୋ ଭଏସ ଅଡିବଲ ଅଛି ତ କ୍ଲିୟରଲି? Yes. ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ତ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन ନंबर 9 ଦେଖିବା। Question number 9 ହଉଛି doubling farmers income has been in focus in agriculture sector, suggest ways to double Odisha's farmers income। ଏଟା straight forward question, ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ଭାବିବାର ବି ନାହିଁ କି doubling farmer income focus ଅଛି agriculture sector ରେ, farmers ମାନଙ୍କ income କେମିତି double କରିବ ସେଟା priority focus ରେ ଅଛି agriculture sector ରେ। ତାପରେ next ପଚାରୁଛି ଓଡ଼ିଶା specific, suggest ways, ତମେ ମାନେ କିଛି ways suggest କର ଯୋଉଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶା farmers ମାନଙ୍କ income ଟା double କରିହବ। Simple straight forward question, ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା in India agriculture employment share in total employment is 45.5%, এটা PLFS ର data। Thus a large population of India is still dependent on agriculture sector for their livelihood। Simple, so it is necessary to double the farmers income to promote the growth of the nation। straight forward introduction ଆମେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଜିନିଷଟା total କଣ। next ଲେଖିବା steps taken by Odisha government to double farmers income। କଣ step ନିଏ ଏଥର ତ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ସ୍କିମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ farmers ର ବେନିଫିଟ ହେଇପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଠି ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ଯେତେ ସ୍କିମ୍ ମନେ ରଖିପାରୁଛି ରିଲେଟେଡ୍, ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଦେଇଛି। ଗୋଟେ କଣ ନା ସେଟିଂ ଅଫ ହର୍ଟିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ମିଶନ, ପ୍ରମୋଟ କଲ୍ଟିଭେସନ ଅଫ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ। ଏଟା କଣ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ହେଲା କଣ ମାନେ ହାଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ୍ରପ୍ସ ନା ନାହିଁ, ତ ହାଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ୍ରପ୍ସ ହେଲେ farmers ମାନଙ୍କ ଇନକମ ଟା ବୁଷ୍ଟ କରିହବ। ତାପରେ spices and other high value crops so that farmers can get more remuneration। simple କଥା, horticulture mission setup ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି high value crops promote କରିବାକୁ। ତାପରେ next ହଉଛି launching of କାଳିଆ scheme which provides financial assistance provide କଲେ ତ ସେମାନେ better cultivation କରିପାରିବେ, farmers ମାନଙ୍କ income boost ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା to ensure water security, quality inputs, market linkage and value addition ହେଲା, then obviously product price ବଢିବ ଆଉ farmer ମାନେ ବି better remuneration ପାଇବେ। ବୁଝା ପଡିଲା? ଏଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକା ସ୍କିମ୍ସ ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ଦେଇଛି। ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଚାରୁଛି ସଜେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ୱେଜ୍ କେମିତି ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କର ଇନକମ ବଢେଇ ହବ, ଡବଲ କରିହବ। ତ ହ୍ୱାଟ ମୋର କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଟୁ ଡବଲ ଫାର୍ମର୍ସ ଇନକମ, ପଚାରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ସେଇ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆମେ ସେଟଅପ୍ କରିପାରିବା, ତାକି ଫାର୍ମର୍ସ ମାନେ ବେଟର ବେନିଫିଟ ହେବେ, ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍କେଜ ହବ, ତାକୁ ଫାର୍ମ ମେସିନାରିଜ ବି ମିଳିପାରିବ, କ୍ରେଡିଟ ବି ମିଳିପାରିବ ଇଜିଲି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ବେଟର ଆକ୍ସେସ ଟୁ କ୍ରେଡିଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରପ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିହବ, ଯେହେତୁ ଇନ ଓଡିଶା ନ୍ୟାଚୁରାଲ calamities are quite often, so agriculture sector is hampered, so we can provide insurance to the farmers so that their crop is insured and they can get the remuneration if natural calamity happens। next ହଉଛି development of FPI so that value addition is possible। FPI ମାନେ କଣ? food processing industries। ଏବେ agriculture ରେ ଆଳୁ ଚାଷ ହଉଛି, ଦେନ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ପଟାଟୋ ଫୁଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଟଅପ୍ କରାହେଲା, ଆଳୁକୁ ଚିପ୍ସ କରାହେଇକି ବିକା ହବ, ଦେନ୍ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ ହବ ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ଯଦି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ ହେଲା ଦେନ୍ ପଟାଟୋ ଚିପ୍ସ ର ଯୋଉ ପ୍ୟାକେଟ କରି ବିକ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅବଭିୟସଲି ଅଧିକା, ତ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ବେଟର ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କହୁଛି ଫୁଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଆମେ ସେଟଅପ୍ କରିବ, ଫୁଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ କୁ ଆମକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକି ଫାର୍ମର୍ସ ମାନେ ବେଟର ତାଙ୍କ ଇନକମ ବଢି ପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି try to implement precision agriculture ଏଟା ଷ୍ଟାଟିକ ପାର୍ଟ। ଏଥିରେ କଣ ନା ଯୋଉଥିରେ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର, ଯେତିକି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦରକାର, ପ୍ରିସାଇଜ ୱେରେ ପକେଇବା, ତାକି ବେଶୀ ୱେଷ୍ଟେଜ ବି ହବନି, ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବି କମିବ ଆଉ ସେମାନେ ବେଟର
इनकम करि परिबे ये काहे ना क्रॉप स्टॉक प्रोडक्शन कम होची तो हमें बेटर प्रिसिजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज भी इंप्लीमेंट करने को चेष्टा करि परिबे। अब नेक्स्ट कंक्लूजन लिखिबा डबलिंग फार्मर इनकम इज द नीड ऑफ द आवर to ensure food security of the country and prevent the agriculture distress in the sector। सिंपल पॉजिटिव नोट रे हमको डबलिंग फार्मर इनकम करिया को पड़े कोन साइ करिया को पड़े कंक्लूजन से एंड करके लिखिबे। बुझा पड़ला समझते कि ये आंसर टा केमती लिखि हबो एथरे आपण चाहिले आप निजो स्कीम्स बहुत सारा ऐड भी कर परिबे किछ असुविधा नै जे भी जते स्कीम मन रखछि ऐड करि परिबे एग्रीकल्चर रिलेटेड जोथरे कि फार्मर इनकम डबल करियो। बुझा पड़ला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। यस सर। ठीक अछि नेक्स्ट होछि एटा भी स्टैटिक क्वेश्चन नहीं कहया को बोले व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हाउ इट इज हेल्पफुल टू द फार्मर्स। तो सिंपल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कोन डेफिनेशन से ही लिखियार अछि। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ सस्टेनेबल agriculture where different farming enterprises like crops, livestock, fishery, etc. integrated to maximize productivity and profitability of the farmers। Simple integrated farming definition ही आसी गला। Then next एथरे आपण आ गोटे जिंस ऐड करि परिबे इंटीग्रेटेड फार्मिंग लेखि कि सेथरे कोन कोन सब हुए सेटा भी जदि गोटे फ्लो चार्ट रे आपण माने डायग्राम करि परिबे गोटे भल लागिबो आंसर को आउटे एनरिच करिवो इंटीग्रेटेड फार्मिंग रे कोन सब आसे तो गोटे फ्लो चार्ट बने कि सेथरे गोटे छोटो डायग्राम टा आपण कर दे परिबे माने एमती गोटे डायग्राम करके छोट छोट कोन आसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग रे लिखि परिबे एमती लेखि आंसर टा भी भल देखा जिवो एटी गोटे गोटे पॉइंट लिखि परिबे सब थरे बुझा पड़ला। देन हमें नेक्स्ट देखिबा हाउ इट इज हेल्पफुल टू फार्मर्स केमिति इंटीग्रेटेड फार्मिंग जोड़ा क्वेश्चन ने पचार छी हेल्पफुल गोटे होची एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी केमिति एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी जदी से माने लाइफ स्टॉक रियर कोछन देन सेटु से माने को मैन्योर भी मिल जिवो आ से माने मिल्क भी सेल करि परिबे मीट भी सेल करि परिबे तो ताकर प्रॉफिट सेइथरे जनरेट हे परिबो। तापर रिसोर्स एफिशिएंसी केमिति ना वेस्ट रिसाइक्लिंग फर्दर डेवलप होबो जो मैन्योर जनरेटिंग होची से गुडा हमें कोन फर्टिलाइजर नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करि परिबो क्रॉप रे तो सेइथरे भी रिसोर्स एफिशिएंट यूज होबो सॉइल हेल्थ भी फर्दर इंप्रूव हे परिबो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रे। रिस्क मिटिगेशन माने कोन धरो फार्मर तार कोन डाइवर्सिफाई करके रखी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से माछ चाष भी करूची आउ एनिमल रेयरिंग भी करूची एग्रीकल्चर करूची क्रॉप प्रोडक्शन भी करूची धरो क्लाइमेट इशू पई जदी क्रॉप प्रोडक्शन रा फेलियर भी होउची देन ता पाखरे आउ दुईटा अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम अछि तो रिस्क ता तार रिड्यूस हे जाउची। सेमिति प्रिवेंशन ऑफ मोनोकल्चर एंड प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन मोनोकल्चर माने कोन ना गोटे टाइप रो ग्रो खाली ग्रो करा होची बट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रे कोन डाइवर्सिफाई होची तार सोर्स टा क्रॉप प्रोडक्शन होची तापरे एनिमल रेयरिंग होची पोल्ट्री होची तो डाइवर्सिफिकेशन होची खाली मोनोकल्चर होनी। तापरे एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नेचुरल मैन्योर जो यूज होची एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉइल पे हेल्पफुल। तापरे मेक्स प्रोडक्शन लेस इनपुट इंटेंसिव माने कोन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तार रिड्यूस हे जाउची काहे ना इनपुट बहुत अधिक था फर्टिलाइजर तापर पेस्टिसाइड इनपुट बहुत अधिक था बट एथरे जदी इंटीग्रेटेड फार्मिंग करछि ताको नेचुरल मैन्योर भी मिल जाउछि तो लेस इनपुट इंटेंसिव होछि ता क्रॉप प्रोडक्शन भी डेवलप होछि आ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस होछि। तापर बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज भी प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विसेज और बायोडायवर्सिटी केमदी प्रिजर्व होछि सॉइल नेचुरल नाइट्रोजन साइकिल थाए सेटा कंजर्व होछि काहे ना नेचुरल फर्टिलाइजर्स की मैन्योर यूज होछि बायोडायवर्सिटी भी प्रिजर्व होछि सॉइल जो माने थाउछंती ए सब होछि केमिति फार्मर को बेनिफिट करि परिबो आईएफएस सिस्टम। देन नेक्स्ट कंक्लूजन हमें लिखि परिबो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज अ मेथड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विथ साइमल्टेनियसली एंश्योरिंग एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी माने डुअल पर्पस सॉल्व करछि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होछि प्लस एनवायरनमेंटल सस्टेनेबल वे रे एग्रीकल्चर भी करि होछि। तो बुझा पड़ले आज जहा जहा क्वेश्चन सब डिस्कस करले सिंपल केमिति आंसर स्ट्रक्चर लिखि हबो। यस सर तो हां तो यस सर क्या कहलो वॉइस तो क्लियर आसुन आथरे कहलो मते वॉइस तो क्लियर आसुनी सर नमस्कार। आई एम नॉट
ହଁ ନମସ୍କାର କୁହ। टाइम टिके 8 रु 9 करते जदी ठीक होंतो सर ऑफिस रु आसपास टिके लेट होची तो आज तो 8 ରୁ 9 ही थिला क्लास ना। नहीं नहीं सर सॉरी 8 रु 9 ठीक है हां 8 9 थिला दिया जी हाँ आज 8 ରୁ 9 क्लास थिला। ओके एबे सरला डिस्कशन 10 मार्क्स रो सब जाको। थैंक यू एई टाइम रे ही रखो ठीक अछि तो हाँ 8 ରୁ 9 ही क्लास थाए मोस्टली तो किछि बेसो करना। तो आज 10 मार्क्स के सब जाक डिस्कस कर देले तो समस्त आइडिया खाली एतिकी रखिबार अछि कि आंसर स्ट्रक्चरटा केमिति हो तापरे ता ऊपर आपण केमिति सीन्स ऐड करिवे डाटा ऐड करिवे ए जे स्ट्रक्चरटा ठीक अछि से भीतर आपण सब जिंस छोट छोट करी ऐड करि परिवे। फर्स्ट क्वेश्चन डिमांड कोन सेटा सैटिस्फाई करबार अछि सेटा सैटिस्फाई हेले क्वेश्चन डिमांड संगे आपण को स्कीम्स ऐड करिया पड़िबो डाटा ऐड करिया पड़िबो सेगुडा भी ऐड करि परिबे। यदि क्वेश्चन डिमांड इज सैटिस्फाई होनी खाली स्कीम्स लिखि देइछो खाली डाटा लिखि देइछो देन केमिति मार्क मिलिबो। फर्स्ट स्ट्रक्चर ठीक रहिथिबा दरकार जहा क्वेश्चन पछे तार आंसर लिखिथिबा दरकार देन स्कीम्स लिखिथिबा दरकार और डाटा देइथिबा दरकार देन गोटे भलो मार्क मिलिबो भलो आंसर गोटे हबो। तो फुल समस्त बुझा पड़ला नेक्स्ट क्लास में 15 मार्कर्स गुड़ा सब जगह डिस्कस करबो।